Matter in our surrounding, lesson 1, class 9th. Evaporation. A change of liquid into vapor without reaching at its boiling point is called as evaporation. When a liquid changes to its gaseous state below its boiling point, that process is called as evaporation. So, evaporation takes place at its surface of the liquid. So, this process is taking place only at the surface. It's not taking place below its surface. So it's only a surface phenomena. Evaporation takes place even at room temperature. As it doesn't have any fixed temperature, so even it takes place at room temperature. Evaporation speeds up with the rise in temperature. As the temperature increases, the rate of evaporation also increases. यानी कि गर्मियों में evaporation ज़्यादा faster होता है, सर्दियों में slow होता है. Evaporation जैसा phenomena अपने water cycle में भी पड़ा हुआ है कि water evaporates from water bodies and then the vapors goes up and then condenses to form clouds. So we are talking about the same evaporation. Process of evaporation. Let's study how evaporation takes place. Molecules at the surface of the water when exposed to temperature experiences an increase in kinetic energy. कि जो surface वाले water molecules हैं, water particles हैं, वो environment से उनको energy मिलती है और उससे वो they get energized और उनकी kinetic energy, उनकी movement की speed faster हो जाती है. So as they get energy from the environment, so they absorb that energy and their kinetic energy increases and slowly they change in their state from liquid to gases. With the increase in kinetic energy, the molecules are able to overcome the force of attraction between the particles of liquid. So as they gain energy from the environment, so their kinetic energy increases and the force of attraction between the particles is overcome. उसको overcome कर लेता है, force of attraction weaker पड़ जाता है. After getting a required kinetic energy with the help of that which helps to decrease the force of attraction, they escape in air in the form of vapors. जैसे जैसे kinetic energy उनकी बढ़ती चली जाती है, तो उस kinetic energy की वजह से उनका force of attraction between the particles becomes weaker and finally they change into gaseous state and they escape. In order to get the required kinetic energy, they get some amount of energy from their neighboring molecules also. Environment से तो ही energy वो ले ही रहे होते हैं, लेकिन अपने neighboring molecules, neighboring particles यानी कि क्योंकि ये phenomena surface पे हो रहा है, तो surface वाले जो particles हैं उससे नीचे वाले particles, उनसे भी वो energy ले लेते हैं, because of which the temperature of the adjacent molecule decreases. क्योंकि अपने से नीचे वाले molecule से उन्होंने energy ले ली है, तो उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. इसीलिए इवेपोरेशन जैसा प्रोसेस लिक्विड को हमेशा ठंडा रखता है. आपने कई बार देखा होगा कि तालाबों में, नदियों में पानी कभी गर्म नहीं होता, जबकि वो धूप की प्रेजेंस में होते हैं, वहाँ कोई छाया थोड़ी होती है, फिर भी पानी हमेशा ठंडा होता है उनका, क्योंकि इवेपोरेशन जैसा प्रोसेस कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Factors affecting evaporation. Temperature is the first factor that affects the evaporation. Increasing temperature also increases the rate of evaporation, because with the rise in temperature, more number of particles get enough kinetic energy to get converted into vapor state. यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही इवेपोरेशन कम होगी. टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है, पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो वेपर स्टेट में जल्दी चेंज हो जाते हैं. Second factor that affects evaporation is the surface area. As it is a surface phenomena, so more is the surface area, faster is the evaporation, and lesser is the surface area, slower will be the evaporation. So we are well aware that the fact that evaporation is a surface phenomenon. Therefore, increasing the surface area increases the rate of evaporation. आपने देखा होगा कि हम कई बार दूध को ठंडा करने के लिए या सब्जी को ठंडा करने के लिए चौड़े बर्तन में डाल देते हैं, क्योंकि चौड़े बर्तन में जैसे डालने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा.
सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा फास्ट इवेपोरेशन होगी, और जितनी फास्ट इवेपोरेशन होगी उतना ही कूलिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। What is humidity? Content of water vapors in atmosphere is known as humidity। यानी कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स कितने हैं, क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर होते ही हैं, क्योंकि इवेपोरेशन हमेशा होता ही रहता है नेचर में। तो वो सारे वाटर वेपर्स कहाँ होते हैं, एयर में होते हैं। तो एयर में कितने वाटर वेपर हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब एयर हर मौसम में सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग मौसम में एयर में अलग अलग ह्यूमिडिटी थी। एयर कैन होल्ड वाटर वेपर अप टू अ सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही होल्ड कर पाते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज ऑलरेडी हाई, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लेस, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एयर में तो ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं। एयर और वाटर वेपर्स लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट होकर कहाँ जाएगा, एयर में ही तो जाना है उसको। Therefore, decreasing the humidity also increases the rate of evaporation, कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बारिशों में पसीना नहीं सूखता है और हमें बड़ा चिपचिपा सा महसूस होता है। अब जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में मई में अप्रैल में पसीना हमारा सूखता है, लेकिन धीरे धीरे जून में मौसम में चेंज आना शुरू हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा पसीना जो है सूख ही नहीं रहा है, और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर रेनी सीजन आ जाता है। तो यानी कि जब ह्यूमिडिटी पीक पर होती है तब बारिशें होती हैं। तो बारिशों के सीजन में इसका मतलब ह्यूमिडिटी एयर में मैक्सिमम होती है, इसीलिए उस टाइम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाता है। Next factor that affects evaporation is wind speed. Evaporation increases with increase in wind speed and decreases with decrease in wind speed. This means rate of evaporation is directly proportional to the speed of wind. आपने कई बार देखा होगा अगर हम कपड़े सुखाते हैं और हवा चल रही हो तो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों है? कि अब ऐसा इसलिए है कि इवेपोरेशन जो हो रहा है, हम मान लो ये वाला हम एग्जाम्पल लें, इसके पास कोई फैन नहीं है इस वाले कंटेनर के, तो इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन ये आसपास की जो हवा है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये कंटेनर के आसपास की हवा और वाटर वेपर्स नहीं लेना चाहते। उसके कंपैरिजन अब जब हम इस कंटेनर को देखें तो इसके पास भी एक फ़ैन रखा हुआ है, तो क्या होगा कि वाटर जब इवेपोरेट करेगा इस कंटेनर से, तो फैन की वजह से वो हवा यहाँ से हटा दी जाएगी, तो नई हवा आ जाएगी, फिर वो नई हवा और वाटर वेपर्स लेने के लिए रेडी हो जाएगी, फिर उसको भी फैन की हवा हटा दे। तो बार बार हवा को हटाने की वजह से और वाटर वेपर्स एयर में एंटर हो पाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। जैसे हमने 4 फैक्टर्स पढ़े वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल करने वाले। Let me repeat them: temperature, wind speed, surface area, humidity. इन 4 फैक्टर्स में से ह्यूमिडिटी को अगर हम साइड कर दें तो बाकी तीनों फैक्टर्स टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगी। ऐसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगी। विंड बढ़ेगी यानी कि स्पीड फास्टर होगी तो इवेपोरेशन फास्टर होगा, विंड की स्पीड स्लो होगी तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। तो ये तीनों फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा कि ये फैक्टर बढ़ते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है, ये फैक्टर घटते हैं तो इवेपोरेशन भी घटता है। लेकिन ह्यूमिडिटी जो फोर्थ फैक्टर है वो उल्टा चलता है। एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ये बिल्कुल वैसे है ना कि अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आप पानी पियोगे, आपको प्यास नहीं लगी तो आप पानी नहीं पियोगे।
ठीक है, उल्टा चल रहा है ना। तो ऐसे ही एयर में जब ऑलरेडी वाटर वेपर्स है तो और वाटर वेपर्स ऐड नहीं हो पाते, इसलिए इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। और अगर एयर में वाटर वेपर नहीं होते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी कम होता है, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। Evaporation causes cooling. So evaporation is a natural cooling phenomena. The principle behind this is, in order to change its state, the matter must either gain or lose energy. तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए या तो वो एनर्जी गेन करे या एनर्जी लूज करे। The molecules of the substances absorb heat energy continuously from the surrounding and thus cool the surrounding. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपोरेट होते रहते हैं, जिससे कि वो कूलिंग कॉज करते हैं और इसी से एनवायरनमेंट कूल होता है। आपने कभी देखा हो पेड़ों के नीचे खड़े हो तो छाया ज़्यादा ठंडी लगती है, उसका कारण ये होता है कि पेड़ों की जो लीव्स हैं उससे वाटर इवेपोरेट होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वो पेड़ के आसपास की हवा से ही हीट लेता है, तो इसीलिए पेड़ के आसपास की हवा ठंडी होती है। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग एवरीवेयर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you should know difference between evaporation and boiling. It's a very important question. Boiling occurs at a fixed temperature. Evaporation occurs at any temperature below its boiling point. Boiling is a quick process. Evaporation is a slow process. Boiling takes place throughout the liquid. पूरे liquid में boiling हो रही होती है. Evaporation takes place only at the surface of the liquid. Bubbles are formed in liquids during boiling. No bubbles are formed in liquids during evaporation. Temperature remains constant during boiling. Temperature may change during evaporation. Thermal energy is supplied in any form, means externally energy is being supplied to the liquid, only then it boils. Thermal energy is supplied by the surrounding. यहाँ पर सिर्फ सराउंडिंग से ही, हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है इवेपोरेशन के लिए। बॉइलिंग में हमें एक्सटर्नली हीट स्पेशल कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी से देनी पड़ेगी, तभी बॉयल होता है लिक्विड। बट इवेपोरेशन में हमें, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, वो सराउंडिंग से ही एनर्जी ले लेते हैं।